Hello student, welcome to e-learning. And today I'm Alok, going to tell you the chapter Childhood Memories, the 8th chapter of your book Vista. I hope you will enjoy the chapter. This is the chapter which have the two extract of writing of two different female writers. दो अलग-अलग female writers की कहानी है इसमें. The first one is titled The Cutting of My Long Hair. पहला टाइटल जो है वो है The Cutting of My Long Hair by Jit Kalasa, and who was a Native American, जो Native American है, writer है. The second one is titled We Too Are Human Being. That was from a Tamil Dalit woman, Bama. And now the main point of the chapters. In this extract, The Cutting Down of My Long Hair, Jit Kalasa described the painful experience of her first day at school. वो अपना painful experience share करती है first day जब वो school जाती है. She was a Native American, वो एक Native American है, and the other student in the school were also mostly Native American. बाकी के जो students हैं वो भी Native Americans ही हैं. Only the staff members were white. जो वहाँ के staff members हैं वो white हैं. Jit Kalasa writes that it was a bitterly cold day. ठंडा दिन था उसके लिए, बहुत ठंडा. The snow still covered the ground and the trees were bare. अभी भी बर्फ पड़ी हुई थी, पेड़ों के ऊपर बर्फ छाई हुई थी. A large bell rang. तभी बैल बजती है for the breakfast. And there was an annoying clatter. चारों तरफ भागने दौड़ने की आवाज सुनाई देती of shoes on the bare floor. फर्श के ऊपर. Jit Kalasa felt herself tied in a bedlam of noise. वो अपने आप को इसमें बंधा हुआ महसूस करती है. Her spirit struggle. उसकी आत्मा उसके विपरीत कार्य करने को मजबूर करती है उसे for its lost freedom. क्योंकि उसे ऐसा प्रतीत होता है मानो वो अपनी स्वतंत्रता खो चुकी है. But all was useless now. लेकिन ये सब बेकार साबित होता है. This is how Jit Kalasa write about the experience for the rest of the day. और बाकी के दिन का वो एक्सपीरियंस यहाँ वो शेयर करती है. A white woman, एक गोरी औरत with white hair जिसके सफेद बाल थे, came up. वो पास में आती है and placed all the girls in a line. और सबको लाइन में खड़ा कर देती है. The girls started marching into the dining room. और सभी डाइनिंग रूम की तरफ बढ़ते हैं. These were Indian girls. ये सारी Indian girls थी. In sense they are the native Indians of America, Native Americans, and in stiff shoes and closely clinging dresses. उनकी जो ड्रेसेस थी उनके शरीर से चिपकी हुई थी. The small girls wore sleeved apron and the shingled hair. छोटी लड़कियां जो थी उनके एप्रन्स पहनी हुई थी और उनके हेयर जो थे शिंगल थे. शिंगल इनसे हेयर मीन्स हेयर्स कट क्लोज एट द नैप ऑफ द नेक. गलरी से थोड़ा ऊपर उनके बाल कटे हुए थे. And little longer up the back of the head. As I walked, जैसे ही मैं चल के गई, noisily in my soft flat shoes, अपने soft flat shoes के अंदर, I felt like sinking to the floor. मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं जमीन में समा जाऊंगी. For my blanket had been stripped from my shoulder. क्योंकि मेरे कंधे से मेरा ब्लैंकेट भी जो था नीचे गिरता जा रहा था. I looked hard at the Indian girls. मैं बड़ी मुश्किल से बाकी की लड़कियों को देख पा रही थी. Who seems not to care that they were even more immodestly dressed than I. In their tightly fitting clothes, because they are also in the tight clothes and I'm not feeling comfortable in that kind of a clothes. While we march in the, जब हम आगे बढ़ रहे थे, the boys enter, तभी लड़के भी enter करते हैं from the opposite door, दूसरी तरफ से. And I watched for the 3 young boys, और मैंने उन 3 लड़कों को देखा who belonged to our own tribe, जो हमारे ही ट्राइब से बिलोंग करते थे. And had joined with me in the same group, और मेरे साथ ही इस ग्रुप को उन्होंने ज्वाइन किया था. I saw them in the rear ranks looking at uncomfortable as I felt. मुझे भी वो उसी तरीके से uncomfortable फील हुए थे जैसे कि मैं हो रही थी. A small bell rang. तभी एक और bell rang होती है. Was tapped and each of the people drew a chair. सबने एक एक चेयर खींची from under the table and I pulled out mine. मैंने अपनी चेयर खींची and at once slipped into it. और जल्दी से मैं उसमें बैठ गई. From one side, but when I turned my head, लेकिन जैसे ही मैंने अपना सर उठाकर देखा, I saw that I was the only one seated. मैंने देखा कि केवल मैं ही थी जो चेयर के ऊपर बैठी थी, बाकी सारे के सारे खड़े हुए थे.
and all the rest at our table remained standing. Just I began to rise, जैसे ही मैं उठने की कोशिश करने लगी, a second bell rang. तभी एक दूसरी बेल बजती है, and was sounded. All were seated at once, और सारे के सारे बैठ जाते हैं. And I had to crawl back into my chair again. और फिर मैं दोबारा से अपनी चेयर पर धीरे से बैठी. I heard a man's voice. मुझे एक आदमी की आवाज सुनाई दे रही थी at one end, एक किनारे पे से, and of the hall, and I looked around to see him. मैंने पीछे मुड़कर उसे देखने की कोशिश की, but all the others hung their hands. लेकिन बाकी के सारे अपने सर झुकाए बैठे थे over their plates, अपनी प्लेट्स के ऊपर. The man must have been saying a prayer before the meals, क्योंकि ये एक तरीके की प्रार्थना थी जो खाने से पहले की जाती थी. As I glanced, जैसे ही मैंने नजर उठाकर देखा at the long chain of tables, इस लंबी सी टेबल्स की कतार को, I caught the eyes of a white woman upon me. मैंने देखा कि एक औरत की निगाहें मुझ पर टिकी थी. I wondered, और मैं सोचने लगी, why the strange woman was watching me so closely, कि ये औरत इस तरीके से मुझे क्यों देख रही है. The man says is my friend, और वो आदमी उससे कुछ बात कर रहा था. And then a third bell was tapped, और तभी तीसरी बेल बजती है. Everyone pick up his knife, हर एक अपने अपने नाइफ्स को उठा लेता है, and fork and begin to eat it, और खाना शुरू कर देते हैं. But this eating by formula was not the hardest trial on the first day. सिर्फ यही एक hardest trial नहीं थी मेरे लिए. Late in the morning, बाद में मुझे ये पता चलता है कि my friend Judin, जो मेरी दोस्त जूडिन थी, वो मुझे बताती है, gave me a little terrible warning. मुझे एक वार्निंग देती है. Judin knew a few words of English, क्योंकि उसे इंग्लिश के कुछ वर्ड्स आते थे. And she had overheard the white woman talk about cutting our long, heavy hair. और उसने ये सुना था कि वह औरत हमारे लंबे भारी बालों को काटने के बारे में कह रही थी. Our mothers had taught us, लेकिन हमारी माओ ने तो हमें ये सिखाया था that only unskilled warrior, जो unskilled warrior होते हैं, जो ऐसे योद्धा होते हैं जिन्हें कोई कुछ नहीं मालूम था, जो कायर होते हैं, उनके श्रृंगल हेयर होते हैं. The woman about cutting our long hairs, our mothers had taught us that only unskilled warriors who were captured had their hairs shingled. उनके बालों को काटा जाता है by the enemy, उनके दुश्मनों के द्वारा. Among our people, short hair was worn by mourners. हमारे ट्राइब में तो सिर्फ मॉर्नर्स के छोटे बाल किए जाते हैं. एंड शिंगल हेयर बाय कॉवर्ड्स, और जो कॉवर्ड्स होते हैं उनके बालों को शिंगल किया जाता है. We discussed, और हमने डिस्कस किया our fate for some moment, कुछ क्षण के लिए. And when Judin said, लेकिन जब जुडिन ने कहा we have to submit, कि हमें तो समर्पण करना ही होगा, because they are strong, वह हमसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है. I rebelled, लेकिन मैंने रिबेल किया कि मैं इतनी जल्दी सरेंडर नहीं करूंगी. नो आई विल नॉट सबमिट, कि मैं इतनी जल्दी सरेंडर नहीं करूंगी. आई विल स्ट्रगल फर्स्ट, पहले मैं इसके लिए स्ट्रगल करूंगी. आई आंसर्ड, मैंने जवाब दिया. आई वॉच माई चांस, मैं अपने चांस का इंतजार करती रही. एंड व्हेन नो वन नोटिस, और जब किसी ने नोटिस नहीं किया, आई डिसअपियर, मैं वहां से निकल गई. आई क्राफ्ट अप द स्टेयर एज क्वाइटली एज आई कुड, शांति से चुपचाप मैं जितना चुप चल सकती थी वहां से निकल गई. And I found a large room, मुझे एक बड़ा सा कमरा दिखाई दिया, with 3 white beds in it, उसमें 3 सफेद बेड बिछे हुए थे. The windows were covered with dark green curtain, जो विंडो थी डार्क ग्रीन कर्टन से ढकी हुई थी. And which made the room very dim, जिसकी वजह से कमरे के अंदर कम रोशनी आ रही थी. Thankful that no one was there, मुझे वहां कोई नजर नहीं आया. I directed my step towards the corner, farthest from the door, और मैं उस कॉर्नर की तरफ पर चलती गई जो दरवाजे से काफी दूर था. ऑन माई हैंड्स एंड नीज, और मैं अपने घुटनों के बल रहकर बैठ के नीचे चली गई. एंड हडल माई सेल्फ इन द डार्क कॉर्नर, एक अंधेरे कोने में अपने आप को छिपा लिया. आई कुड हियर लॉयड वॉइस, मुझे तेज आवाजें सुनाती रही जो मेरे नाम को पुकार रही थी, कॉलिंग माई नेम. आई डिड नॉट ओपन माई माउथ, लेकिन मैंने अपना मुंह नहीं खोला टू आंसर, जवाब देने के लिए. Then the sounds came nearer and nearer. धीरे धीरे वे आवाजें मेरे करीब आती गईं. Women and girls entered the room. वे सारे रूम के अंदर एंटर करते हैं. Someone threw up the curtains. कुछ ने पर्दों को हटा दिया, कर्टन्स को हटा दिया. And the room was filled with light. और पूरे कमरे के अंदर रोशनी भर जाती है. And they looked under the bed.
और बिस्तर के नीचे वो देखते हैं। आई वॉज ड्रैग्ड आउट, और मुझे बाहर खींचा जाता है। आई रेसिस्टेड, मैंने बहुत रेसिस्ट किया। बाय किकिंग वाइल्डली, तेजी से अपने पैरों को मारते हुए, हाथों को मारते हुए वाइल्डली। बट आई वॉज कैरिड डाउन स्टेयर, मुझे नीचे लाया गया। एंड टाइड फास्ट इन अ चेयर, और एक कुर्सी से बांध दिया गया। आई क्राइड अलाउड, मैं जोर जोर से चिल्लाई। शेकिंग माई हेड, मैंने अपना सर भी हिलाया। ऑल द वाइल, हर वक्त, आई फेल्ट द ब्लेड्स ऑफ द सीजर्स अगेंस्ट माई नेक, और मुझे एहसास हुआ किस तरीके से सीजर की जो ब्लेड थी वो मेरे गले से टच हुई। एंड आई हर्ड दैम gnॉ ऑफ वन ऑफ माई थिक बेयर्स, और एक मेरी मोटी सी चोटी जो थी कट के नीचे गिर गई। देन आई लॉस्ट माई स्पिरिट, और तब मैंने अपनी स्पिरिट भी खो दी। माई लॉन्ग हेयर वॉज श्रिंगल, मेरे बड़े बड़े बाल काट दिए गए थे। लाइक अ कॉवर्ड, एक काया की जैसे। इन माई एग्निश, और अपने गुस्से में, आई मोन्ड, मैं चिल्लाई। फॉर माई मदर, अपनी माँ को के लिए। बट नो वन केम टू कम्फर्ट मी, लेकिन कोई मेरे को कंफर्ट प्रोवाइड करने के लिए नहीं आया। नाउ आई वॉज ओनली वन ऑफ मैनी लिटिल एनिमल्स ड्राइवन बाय हर्डर, और अब मैं उन्हीं में से एक छोटी जानवर थी जिसे चरवाहे चरा कर ले जाने थे। दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर, cutting down of my long hair. I hope you will enjoy it. Thank you.